Hello friends, a warm welcome. We have met before and we have discussed all about English, all about our 11th standard. Children, this is the time when we are starting upon a journey to learn English. Now as we start today, children, you can see on your screens the cover page of your English textbook. Okay, English Yuvak Bharati it is called as, children. And if you go to study about it, you have all the types of literature that will be covering the different stories and the different parts of literature throughout the world. Okay, as you move on to the screen, children, this is the entire prose section that we are going to study. How many lessons are there, children? 6 lessons. Okay, the first one, children, being neighborly. Then we have got On to the Summit, which talks about the climb of the Mount Everest by Tenzing Sherpa. The Call of the Soil, children, which is talking about a kind of rice or organic farming. Pillars of Democracy, written by Baba Saheb Ambedkar. We got Mrs. Addis, which is a story written by Shaila K. Smith. Okay, and then finally Tiger Hills. Children, Tiger Hills is a story of Kargil. कि इंडिया ने कारगिल का वॉर किस तरीके से जीता था उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. ओके, नाउ आफ्टर कवरिंग ऑल द 6 chapters, children, then we will come across the poems. What can you see, children, here? The first one, Cherry Tree. Ruskin Bond, who is a very famous Indian poet, children, will be studying about him. The Sower, again, farmers को praise करता हुआ एक poem written by Victor Hugo. Then there is Another Sky. Emily Dickinson was a very famous American poet. उन्होंने लिखा हुआ एक पोएम पढ़ेंगे. Upon Westminster Bridge. बच्चों, विलियम वर्ड्सवर्थ ने पूरे के पूरे लंदन की सिटी को डिस्क्राइब किया है कि वो वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर से कैसे दिखाई देता है. Then we have one case that will go into the court, children, that is nose versus the eyes. उसके बाद में आएगा बच्चों लोग the planners. ओके, शहरों को, सिटीज को प्लान करने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में. देन चिल्ड्रन, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट्स सेक्शन 3 नोन एज राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स में बच्चों सबसे पहले आएगा आपका एक्सपांशन ऑफ आइडियाज. आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जैसे कि क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस एंड वी कैन राइट अ पैराग्राफ ऑन दैट. व्यूज, काउंटर व्यूज होते हैं बच्चों लोग, जैसे कि वी हैव अ व्यू विच सेज दैट learn and earn or earn and learn. This concept should be popularized. तो उसका व्यू होता है और उसका काउंटर व्यू होता है. फिर हम लोग सीखने वाले बच्चे लोग ईमेल राइटिंग. क्या सीखेंगे? ईमेल राइटिंग. आफ्टर दिस ईमेल राइटिंग, चिल्ड्रन, विल ऑल्सो कम अक्रॉस द इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे. क्वेश्चंस एंड आंसर्स बोथ विल बी कवर्ड. फिल्म का रिव्यू कैसे लिखने का. एंड देन दिस द आर्ट ऑफ comparing. The art of comparing, children, talks about how comparison is done for basic ceremonies like weddings, okay, for any parties and all. The master of ceremonies they are known as. और अपने बच्चों लोग टेक्स्ट बुक का लास्ट का सेक्शन है which is talking about the genre of drama. So हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लोग पूरा का पूरा हिस्ट्री इंग्लिश ड्रामा के बारे में. Then we have got the rising of the moon. लेडी ग्रेगरी ने लिखा हुआ एक ड्रामा. And then there are 2 dramas, one by William Shakespeare, which is known as A Midsummer Night's Dream. You'll enjoy learning that. And then Henrik Ibsen ने लिखा हुआ बच्चों लोग An Enemy of the People. So entirely, children, this is going to be the syllabus. Children, just because we are going to start it today, I'm going to introduce to you a very interesting chapter. And then in the next lecture, we will complete that topic. We will go slowly. Since we are starting with the first chapter, children, or for us it's the first chapter, in your textbook, children, the first chapter, which is known as Being Neighborly, is a bit lengthy and time consuming. So we are going to start with something, children, which will be interesting and will complete in 2 lectures. Okay, then we will come back to our first chapter. So here we go, children, onto your screen. Can you see one picture? Yes, that's a picture of Tenzing Norgay. अच्छा, क्या लिखा हुआ है बच्चों लोग यहाँ पे? 29 मई 1914 को बर्थ हुआ था उनका और 9 मई 1986 को डेथ हुआ था. ठीक है, उनका बर्थ नेम जो था बच्चों लोग, इट्स नोन एज नामग्याल वांगडी.
अच्छा, then throughout his life people have referred to him as Sherpa Tenzing. Sherpas children are basically the people in Nepal who do the work of climbing the mountains. Now you just see one word is mentioned, children, Nepali Indian. So Sherpa was a Nepali Indian. He was born in Nepal but he lived in Darjeeling. Okay, so he was a mountaineer. Children, what was his achievement? He was the first among the two individuals who have known to reach Mount Everest. But children, the highest peak of the Himalayas, the highest mountains in the world, और उसको climb करने वाले दो individuals, Edmund Hillary and Sherpa Tenzing, or Sherpa Tenzing is one among the two. And when did they achieve this particular task in life? 29th May 1953. What is the day? 29th May 1953. And if you just observe, children, I think that was his birthday. So अपने birthday के दिन ये दुनिया के topmost point पे जाके पहुंच गया था, and that was the accomplishment that he made. So children, here we understand that nothing is impossible in life. Whenever you say that yes, I can do it, there is no speed breaker that will come between you and success. If you tell yourself that, oh, I won't be able to do this, then you don't find the way to success. As you see in the table that's mentioned there, children, so usko kuch honors mile hain. Among the honored children, the first one mentioned here as the Tiger Medal. Acha, when did he get it, children? 1938. Acha, who gave him the Himalayan Club? Acha, for Everest expedition. Everest expedition, children, is like expedition is a mission. Okay. Then children, we have got one more award coming his way, the Star of Nepal, in which 1953, given to him by the King of Nepal, King Tribhuvan. Why? For his all achievements, children, we can say, not for particular achievement. And then Government of India, children, in the year 1959 has honored him with the Padma Bhushan, okay, for all of his accomplishments. So children, what this lesson is all about? Tenzing describes the climb to the top, Mount Everest के ऊपर ये लोग कैसे पहुंचे थे, and how did he climb down, ठीक है, and what brought him to climbing. That's, children, what we are going to analyze in this particular chapter. So we'll just take you through the summary, but as I said, children, we will be dividing, since you people are not habituated to sitting for long hours in front of your mobiles, or maybe while you play games and all you might be sitting, but for studies I won't say you will be able to sit for long hours. So we'll be dividing the chapters into smaller parts, we can say, and we'll enjoy them learning. Okay. Now onto your screen, children. Here, when we left the camp 9 on Friday morning, the camps, children, they are the basic steps that you follow when you're climbing. They are the places which these people, they halt. Okay, so Friday morning when these people, they left camp 9, okay, he says that I was very determined to get to the top. उसको पता था कि कुछ भी करके आज मैं दुनिया के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने वाला ही हूं, ठीक है. And then he remembers that particular morning, उसी सुबह को वो सोच भी रहा था क्या. He got a very famous sentence here, children. He says that I was to get to the top even if I die. अगर आज मैं मर भी गया तो भी मैं टॉप पे जाने वाला ही था, ठीक है. And as you know, children, because this was his life's biggest and the greatest achievement, he says that I was not afraid to die that day. इस दिन मैं मौत से नहीं डरने वाला था, ठीक है. So early morning, children, these people have set out from which camp? Camp 9. And to the camp or camp 9 से आगे जैसे ये लोग बढ़ रहे थे, who were the two people, children, who were onto this expedition? There were many people, but these two were a part of that. That's Tenzing Sherpa, and then we also got Edmund Hillary. अच्छा, they alternated. कौन सा वर्ड मेंशन है यहाँ पे बच्चों लोग? Alternated. Alternated मतलब बच्चों लोग बारी बारी, कभी ये आगे जाता था, कभी वो पीछे रहता था, कभी ये वो पीछे, वो आगे और ये पीछे. So they were alternating, children, ठीक है.
Now, sometimes Sherpa Tenzing took the lead. Lead is children, for example की लाइक लीड करना है आपको, आगे बढ़ना है. और कभी कभी कौन लीड कर रहा था? हिलरी. The man who follows the climbing has a difficult job, maybe while climbing up or while climbing down children as well. मतलब जो व्यक्ति फॉलो करता है, एक होता है बच्चे लोग जो लीड करेगा, एक होता है जो फॉलो करता है. तो यहाँ पे क्या मेंशन किया है? जो फॉलो करता है क्लाइंब करते वक्त और जो फॉलो करता है डाउन आते वक्त. तो दोनों भी टाइम पे फॉलो करने वाले का काम बच्चे लोग इट्स गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट बिकॉज ही इज द एंकर. ऊपर चढ़ते हुए बच्चे लोग ये फॉलो करने वाला आदमी एंकर, जिसके भरोसे आगे वाला व्यक्ति प्रोसीड करता रहेगा. और व्हेन दे आर क्लाइंबिंग डाउन चिल्ड्रन, तो जो बैक साइड में रहेगा ना बच्चे लोग, वो एक एंकर रहेगा जिसके सारे नीचे उतरेगा. ठीक है. सो द मैन गोइंग इन द लीड cuts the steps and breaks the ways. So आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बच्चे लोग क्या करेगा? रास्ता काटते हुए जाएगा और स्टेप्स बनाते जाएगा और ये उसको फॉलो करता हुआ जाएगा. ठीक है. You know children, we know that he was a Nepali. Then he also know that he is an Indian. So we refer to him as a Nepali Indian children. The day when these people were moving out children to the Mount Everest, he says that he had 4 flags in his pocket. 4 फ्लैग्स थे बच्चों उसके पॉकेट. ठीक है. जब वो कैंप 4 पे था, अभी फिलहाल तो आज कहां से निकले लोग? कैंप 9. लेकिन द डे व्हेन दे वर एट कैंप 4 चिल्ड्रन, कर्नल हंट, एक कौन थे बच्चे लोग? ये जो मिशन था कहां पे जाने के लिए, माउंट एवरेस्ट, उसके लीडर थे कौन? कर्नल हंट. ही हैड गिवन हिम 3 फ्लैग्स. हाउ मेनी फ्लैग्स? 3 फ्लैग्स. किसके किसके थे जरा देख लो. एक ग्रेट ब्रिटेन का फ्लैग था, देन यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग और नेपाल. ठीक है. एंड शेरपा तेंजिंग वाज गिवन एन इंपॉर्टेंट जॉब. शेरपा तेंजिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया था बच्चों लोग. कर्नल हंट ने उसको क्या बोला था पता है? दैट ही हैज द ड्यूटी ऑफ प्लांटिंग देम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है बच्चों लोग. तो सीधी सी बात है कि तीनों भी झंडे कहां पे लहराने थे उसको? दुनिया के टॉप पे. और कर्नल हंट ने बच्चों उसको बताया भी था. क्या बताया था? These 3 flags are in your care. ये तीनों भी झंडे मैं तुम्हारे पास दे रहा हूं, तुम्हारे हवाले कर रहा हूं. एंड व्हेन यू एंड हिलरी रीच द टॉप, जब तुम और हिलरी, तुम मतलब कौन? शेरपा. और हिलरी कहां पे पहुंच जाओगे? टॉप पे. ओके. पुट देम एट द पीक. कहां पे लहराना है उसको? वो जो माउंट एवरेस्ट बच्चे लोग चोटी है, फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट पॉइंट, वहां पे लहराओ. ठीक है. एंड ही सेज दैट आई एम क्वाइट श्योर दैट हिलरी एंड यू आर गोइंग टू डू इट. मुझे ये भी पता है कि तुम कर दोगे. सो चिल्ड्रन, दैट इज अ कॉन्फिडेंस शोन बाय हु? कर्नल हंट. ऑन होम? शेरपा तेंजिंग एंड हिलरी. Children, as these people have started upon their journey, we will also understand that Colonel Hunt was अभी वहां पे ये 3 फ्लैग्स तो उसको सौंपे गए थे. तभी शेरपा तेंजिंग ने बच्चों लोग कर्नल हंट को कुछ एक बात बताई थी. He says that I was even carrying the Indian flag with him, and he wanted to ask the permission from Colonel Hunt if he could put it on the top with the other flags. बाकी के झंडों के साथ में क्या मैं इंडिया का तिरंगा जो है वो भी वहां पे ऊपर लहरा सकता हूं क्या करके. ठीक है. क्योंकि कर्नल हंट बच्चों लोग ये एक्सपेडिशन के मेन लीडर थे, तो उनको पूछना ये उनका ड्यूटी था बच्चों लोग. ठीक है. तो कर्नल हंट ने मना तो नहीं किया रहेगा. What did Colonel Hunt reply, children? He says, by all means, बिल्कुल तुम लगा सकते हो इंडिया का झंडा वहां पे. और मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि तुमने अपने साथ में इंडिया का फ्लैग भी लाया है. Though children by birth, he was a Nepali. I think he also had that Indian feeling because the rest of his life he had lived in India. ठीक है. Now, 1 घंटे के लिए बच्चे लोग स्टेडी क्लाइंबिंग के साथ, मतलब स्टेडीली वो लोग क्लाइंब कर रहे थे. ठीक है. अच्छा, साउथ के फेस की तरफ, मतलब साउथ का जो पार्ट था माउंट एवरेस्ट का, वहां से ऊपर जाना चालू कर दिया था उन लोगों ने. ठीक है. वेस्ट साइड से जब वो लोग निकले थे तो दे हैड टू पास अ स्टीप लाइन ऑफ रॉक्स. चट्टानों की एक पूरी कतार थी वहां पे बच्चों, उसके ऊपर से चढ़ के जाने का था उन को. एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन दे वर गोइंग वेरी स्लो एंड डिफिकल्ट. धीरे धीरे, क्योंकि बच्चों लोग
इससे पहले शेरपा तेंजिंग ने 6 बार ट्राई कर चुके थे माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने के लिए, एंड ही हैड फेल्ड 6 टाइम्स. सो नाउ दिस पीपल हैड टू बी वेरी केयरफुल एंड दे कुडंट टेक एनी चांस. उनको पता था बच्चों, एक बार ये चट्टानों की जो कतार थी यहाँ पे, इसको क्रॉस कर लेंगे तो उनको माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने से कोई रोकने वाला नहीं था. देयर वाज नो वन गोइंग टू स्टॉप देम. हाँ, नाउ वे टू द टॉप बट अ स्नो कवर्ड इंक्लाइन, मतलब बर्फ से गिरी हुई लोग यहाँ पे एक इंक्लाइन थी. इंक्लाइन इज लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर ढकान बोलते हैं उसको, ठीक है, ढकान. और स्लोपिंग चिल्ड्रन इट्स टॉकिंग अबाउट द स्लोप. वो ज्यादा ही स्लोप करते जा रहा था एंड दे वर नियरिंग टू द टॉप. कहां पे जा रहे थे वो लोग? टॉप की तरफ. ठीक है. दिस लास्ट 60 और 70 फीट अप टू द टॉप वर नॉट वेरी डेंजरस. आखिरी बच्चे लोग 60 या फिर 70 फीट का डिस्टेंस था ऊपर जाने के लिए, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं था. सो वी केप्ट द सेम स्टेडी स्पेस. धीरे धीरे आराम से वो लोग ऊपर बढ़ रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे. Then they reached the small flattened summit almost together. तो साथ में ही वो लोग flatten, यानी क्या बच्चों लोग, यहाँ पे we are talking about a flat surface. Summit शिखर होता है बच्चों लोग, पहाड़ का सबसे ऊपर का जो चोटी रहता है उसको हम लोग यहाँ पे summit करके रिफर कर. ठीक है. During the last 50 feet from the peak, पहाड़ की चोटी से जब वो लोग 50 फीट दूरी पे थे, when they were 50 feet away from the top, Hillary and शेरपा तेंजिंग they were moving around 20 feet apart. दोनों के बीच में चलो डिस्टेंस कितना था? 20 फीट. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, बोथ दिस पीपल दे वर टाइड टुगेदर विद अ रोप. दोनों को भी किससे बंधा हुआ था बच्चों लोग? किससे बंधे हुए थे? दोनों भी एक रस्सी से बंधे हुए थे. ज्यादातर टाइम बच्चों लोग द रोप वॉज लूज, लेकिन जैसे ही कोई डेंजरस एरिया आता था जहां पे ज्यादा ढलान होती थी बच्चों लोग, तो वो लोग उस रोप को टाउट करते थे. टाउट इज लाइक फॉर एग्जांपल टाइट पकड़ना. तो ज्यादातर लूज, लेकिन जब भी कोई टेंशन दिखेगा तो उसको कस के पकड़ लेते थे वो लोग. ठीक है. ये बच्चों दोनों के बीच में जो रोप था, इट वॉज अ सिंबल. क्या था ये? सिंबल था बच्चों लोग, जो दोनों को बांध के, मतलब लाइक इट टाइड अस टुगेदर बिकॉज दे न्यू दैट वन कुड नॉट मूव विदाउट द अदर. मतलब बच्चों लोग यहाँ पे दोनों ने जो टीम वर्क दिखाया था, क्योंकि एक के मतलब दूसरे के बिना तो एक को आगे जाना था. ऑलमोस्ट लाइक चिल्ड्रन इट वाज इम्पॉसिबल. सो वी वर नॉट टू इंडिविजुअल्स बट वी वर अ टीम. इसको बोलते हैं चलो टीम स्पिरिट. एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो ही आप ऊपर तक पहुंच सकते हो. दैट्स व्हाट वी कैन रिफर टू योर चिल्ड्रन. ठीक है. अच्छा, बहुत बार बच्चों लोग शेरपा तेंजिंग को एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कि तुम दोनों गए पहाड़ पे, वो बराबर है, लेकिन पहले कौन पहुंचा? तो ही अंडरस्टैंड्स इट वेरी नाइसली चिल्ड्रन. ही सेज दैट व्हेन वी वर विद इन द रीच ऑफ द समिट, यानी शिखर के बहुत नजदीक पहुंच गए थे वो लोग, तो क्या बोलते हैं कि लाइक वी नेवर थॉट कि लाइक हु वाज गोइंग टू बी फर्स्ट. हम लोगों ने कभी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि पहले कौन जाएगा वहां पे. ठीक है. मैंने तो कभी सोचा नहीं था, एंड आई एम श्योर दैट हिलरी वाज नॉट थिंकिंग दैट. मुझे ये भी पता है कि मैं तो सोच ही नहीं रहा था, लेकिन हिलरी भी मुझे नहीं लगता ये सोच रहा था कि पहले कौन ऊपर जाएगा. क्योंकि क्लाइंबिंग करते वक्त बच्चों आपको इतना अटेंशन, इतना ध्यान खींचता है क्लाइंबिंग, कि आपको बाकी सब चीजों के बारे में सोचने के लिए तो बच्चों लोग को वक्त ही नहीं मिलेगा. सो बिकॉज यू गॉट लॉट ऑफ वरीज, देन यू विल कीप ऑन थिंकिंग चिल्ड्रन के लिए हाँ कौन पहले ऊपर पहुंचने वाला है. नहीं. एंड सी इट्स चिल्ड्रन वेरी लेस इंपॉर्टेंट हु रीचेस देयर फर्स्ट, कि मैं वहां पे पहुंचने वाला था या फिर हिलरी वहां पे पहुंचने वाला था. ठीक है. सो देयर मेन थॉट वाज दैट बोथ ऑफ अस वर सपोज्ड टू रीच द टॉप, कि हम दोनों को भी ऊपर पहुंचना था. ठीक. एंड वी हैड टू, बिकॉज वन कुडंट डू इट अलोन, क्योंकि हम लोग को पता था कि हम दोनों में से कोई भी अकेला ये काम नहीं कर पाएगा. सो वी हैड टू बी टुगेदर. हाँ, नाउ यू हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर चिल्ड्रन. वो क्या बोलता है कि देखो, हिलरी और मेरे बीच में अगर 1000 फीट का डिफरेंस होता था तो मैं बोल सकता था कि वो पहले पहुंचा और मैं, या फिर मैं बाद में, या फिर मैं पहले और वो बाद में. लेकिन दोनों के बीच में चलो डिस्टेंस कितना था? हार्डली 20 फीट. तो चलो 20 फीट में पहला और दूसरा ऐसा कुछ होता नहीं है. और इन दोनों के अलावा किसी को पता भी तो नहीं ना बच्चों कि लाइक व्हाट वाज द एग्जैक्ट डिस्टेंस और हु रीच्ड इट. So you have to believe whatever they say. And they said that neither Hillary
nor Sherpa Tenzing. They say we reach the top. अगर आप लेसन का टाइटल भी देखोगे बच्चे लोग यहाँ पे, तो लेसन के टाइटल पे ही मेंशन किया हुआ है that they want to say that on to the summit we reach the top. नहीं तो बच्चे लोग आज के जमाने में झगड़ा भी होता था ना कि हाँ मैं पहले पहुंचा तू पहले पहुंचा, और बाद में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होता था. लेकिन दिस पीपल आर वेरी स्मार्ट, इन्होंने ये कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो इसके लिए भी पहले ही केयर किया था, मतलब ताकि कोई. सो कौन से कैंप से स्टार्ट किया गया था बच्चों लोग ये सब कुछ? दे स्टार्टेड फ्रॉम कैंप 9, दैट वाज अ फ्राइडे. ठीक है. सो टर्न बाय टर्न चिल्ड्रन एज दे वर ट्राइंग टू रीच द टॉप, and then he had made a determination in his mind, children, that I will get to the top even if I die. अच्छा, कैंप 9 से जब वो लोग निकले थे तो ऑल्टरनेटेड का मीनिंग मैंने आपको बोला था. समटाइम्स उनके कोलिग का नाम क्या था बच्चों लोग? एडमंड हिलरी. ही वाज अ न्यूजीलैंड माउंटेनियर एंड शेरपा तेंजिंग. तो ऑल्टरनेट, कभी वो आगे ए पीछे, ए आगे ओ पीछे, वैसे. ठीक है. अच्छा, बट एज ही सेड चिल्ड्रन कि लाइक जो आगे बढ़ता है उसको हम लोग लीड बोलते हैं. वन हु फॉलो चिल्ड्रन फ्रॉम द बैक इज कॉल्ड एज अ फॉलोवर. इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंकर, क्योंकि उसका काम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता था. क्लाइंबिंग अप और क्लाइंबिंग डाउन चिल्ड्रन, आई थिंक जो एंकर होता था बैक से फॉलो करता था, क्योंकि आगे बढ़ने वाला क्या, ही कट्स द पाथ, मेक्स द स्टेप्स, और इसको फॉलो करना पड़ता था. ठीक है. अच्छा, एनीवन रिमेंबर चिल्ड्रन कौन कौन से कंट्रीज के फ्लैग्स कैरी किए थे उन्होंने उस दिन? एनीवन रिमेंबर्स? अच्छा, सो लुकिंग ऑन द स्क्रीन. ओके, नो प्रॉब्लम. सो दे वर कैरिंग चिल्ड्रन सम फ्लैग्स, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन. क्योंकि बच्चों ये जो पूरा एक्सपीडिशन स्टार्ट किया गया था ये एक्चुअली ब्रिटिश एक्सपीडिशन था. अच्छा, तो ब्रिटिश का फ्लैग था. अभी यूनाइटेड नेशंस, तो इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द एंटायर वर्ल्ड, तो यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग. Okay, and then they also had a flag that belonged to Nepal. Why Nepal? Obviously, maybe for Tenzing Norgay. अच्छा, तो कर्नल हंट जो इस एक्सपीडिशन के बच्चे लोग कौन थे? लीडर थे. उन्होंने 3 फ्लैग्स किसको दिए थे? तेंजिंग नॉर्गे, और बोला कि लाइक टुडे यू आर गोइंग टू पुट देम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो आई एम गिविंग दिस 3 फ्लैग्स इन योर केयर, इनको संभाल के रखना और दुनिया के टॉप पे लगाना है करके. ठीक है. एंड ही ऑल्सो सेड दैट आई एम क्वाइट श्योर दैट यू एंड हेलरी आर गोइंग टू डू इट टुडे. तो आई थिंक दैट्स द कॉन्फिडेंस दैट हु कर्नल हंट शोड इन हिलरी एंड तेंजिंग. अच्छा, एज दे हैव स्टार्टेड ऑन टू द जर्नी. लेकिन यहाँ पे और एक बात हो गई थी, जहां पे तेंजिंग नॉर्गे ने कर्नल हंट को एक बात पूछी थी कि सर आज मैं अपने साथ में इंडिया का भी एक फ्लैग लेके आया हूं, सो कैन आई पुट इट ऑन द टॉप? सो कर्नल हंट ने बोला कि यस, आई एम वेरी प्राउड कि लाइक तुमने इंडिया का भी फ्लैग लाया है. ओके, एंड बाय ऑल मीन्स तुम बाकी सब फ्लैग के साथ में ये फ्लैग भी ऊपर लहरा सकते हो. ठीक है. तो इससे उनका थोड़ा पेट्रियोटिज्म दिखाई देता है बच्चों लोग. ठीक है. सो after they started from this like you know, sometimes the places was steep, sometimes it was flattened. So following all this difficulty children, steep line of rocks, okay, kabhi difficult tha. अच्छा, but they made it. I would say for example when it was sloping less, तो उनके लिए थोड़ा आसान होता था आगे बढ़ना. जब ऐसे inclined slope आता था, snow covered होता था, तो it used to be a bit difficult as well. ठीक है. वो जो लास्ट के 60 फीट का जो डिस्टेंस था चलो, दैट वाज नॉट सो डिफिकल्ट, इट वाज नॉट सो डेंजरस. सो एक पेस मेंटेन करके वो जो फ्लैटन समिट था, फ्लैटन मतलब चलो फ्लैट, समिट मतलब क्या होता है? शिखर. वहां पे वो लोग पहुंच गए थे. ठीक है. अच्छा, देन चिल्ड्रन आई टोल्ड यू अबाउट वन कंट्रोवर्सी दैट वाज क्रिएटेड. जैसे वो लोग ऑलमोस्ट काठमांडू पहुंचने वाले ही थे, तो वहां पे उनको पूछा जा रहा था बच्चे लोग कि हु वाज द फर्स्ट वन हु रीच्ड. कि तुम दोनों में, अच्छा तुम दोनों पहुंचे वो बराबर है, लेकिन पहले कौन पहुंचा? तो प्रॉब्लम ये था बच्चों लोग कि लाइक एट द एंड व्हेन दे वर क्लाइंबिंग, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो था वो कितना था? 20 फीट. तो 20 फीट की दूरी पे, एंड दे वर टाइड बाय अ रोप. तो रोप को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया था. इफ यू रिमेंबर चिल्ड्रन, ही सेज दैट वाज नॉट अ रोप बट इट वाज अ सिंबल ऑफ टीम. अच्छा, सिंबल जो था रोप, ज्यादातर उसको लूज पकड़ते थे, बट वेन एवर देयर वाज सम डेंजरस पाथ टू क्लाइंब, तो लोग उसको टाउट यानी क्या टाइट करते थे. अच्छा, वहां पे पहुंचने के बाद क्या पूछा गया था कि तुम दोनों पहुंचे, वो तो ठीक है, लेकिन पहले कौन पहुंचा? सो लोग तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए तैयार ही थे, लेकिन दिस पीपल आर वेरी स्मार्ट.
तेंजिंग नॉर्गे से चिल्ड्रन की लाइक हम दोनों के बीच में अगर 1000 फीट का डिस्टेंस होता था तो मैं बोल सकता था कि लाइक हाँ वो पहले था मैं दूसरा था, फिर मैं पहले था वो दूसरा था। अच्छा, लेकिन यहाँ पे गैप कितना था, सिर्फ 20 फीट। तो 20 फीट पे फर्स्ट और सेकंड ऐसे कुछ नहीं होता है। सो दे सेड दैट वी रीच द टॉप। क्या बोला है, वी रीच द टॉप, बिकॉज दे डिड नॉट वांट एनी कंट्रोवर्सी। अब चलो क्योंकि वो लोग पहाड़ के ऊपर 2 ही जन तो थे, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था उन दोनों के अलावा और कोई बता भी तो नहीं सकता है कि हाँ मैंने देखा था, ये पहले गया था करके, नो। सो फर्दर चिल्ड्रन, इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल द कंट्रोवर्सीज का मतलब चलो क्या होता है, डिसएग्रीमेंट, और इट्स लाइक डिस्कशन होते रहता है, बहस होती है, विवाद होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये जो हिलरी था बच्चों, कर्नल हंट था एंड तेंजिंग, दे ऑल न्यू दैट दिस वाज जस्ट अ चाइल्डिश टॉक, बचकानी बात चल रही थी कि लाइक पहले कौन पहुंचा था। सो दिस पीपल आर वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन। व्हाट दे डिड, दे मेड अ पैक्ट। क्या किया था, पैक्ट। चिल्ड्रन, व्हाट इज पैक्ट? पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, एक लीगल, एक फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स और 2 पार्टीज। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के सामने बच्चे लोग उन्होंने एक पैक्ट किया था और अपना स्टेटमेंट देके दे साइन द स्टेटमेंट कि लाइक एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था करके। अच्छा, हिलरी ने जो स्टेटमेंट लिखे उसका सिग्नेचर था, उसका एक कॉपी तेंजिंग के पास आज भी है बच्चे लोग। उसमें उन्होंने लिखा था लाइक काठमांडू 22 जून 1953। देन दे सेड कि लाइक व्हेन दे लेफ्ट 29 मई, तेंजिंग शेरपा और वहां से निकले थे, सो दे वर मेकिंग ऑल लाइक फॉर अ अटेम्प्ट ऑन द समिट, मतलब कोशिश करने वाले थे वो लोग आज ऊपर पहुंचने के लिए। तो एज दे वर गोइंग चिल्ड्रन, पहले समिट को हम लोग साइड से जानते हैं बच्चों, लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उनका एक लैंग्वेज होता है जो एक दूसरे को हिंट देने के लिए काम आता है। तो साउथ समिट की तरफ से निकले थे। फ्रॉम विच साइड दे सेट आउट चिल्ड्रन, फ्रॉम द साउथ समिट, बट फ्रॉम देयर एक मतलब फ्रॉम वन देन द अदर, एंड दे वर टेकिंग अ टर्न इन लीडिंग। और जैसे ही साउथ का समिट क्रॉस किया था उन्हें, साउथ का साइड, एंड देन दे वेंट अलोंग द समिट रिज। रिज का मतलब होता है चलो एक एज आएगा जिसके नीचे पूरा का पूरा खाई दिखेगा, तो उसको हम लोग रिज करके बोलते हैं। सो वहां पे तो लोग साथ में पहुंचे थे, दे रीच्ड टुगेदर। नाउ जैसे ही वहां पे ऊपर पहुंचे थे, सो जस्ट कैन यू चिल्ड्रन इमेजिन द अमाउंट ऑफ जॉय दैट दिस पीपल मस्ट बी गोइंग थ्रू। बच्चों लोग, मतलब हिस्ट्री जहां तक जानता है तो तब से these were the 2 persons who were the first to reach the top of the Mount Everest, which is the highest peak of the Himalaya. तो ऊपर जाने के बाद they must have embraced each other, they must have overjoyed to feel the success. फिर तेंजिंग का एक फोटो लिया था हिलरी ने, ठीक है। अच्छा, और उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा था चलो, ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का फ्लैग। अच्छा, और इस पेपर ये एक्चुअली वॉट एवर आई रेड टू यू नाउ एक स्टेटमेंट है बच्चों लोग जो हिलरी ने लिखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के सामने, उसके नीचे साइन किया था हिलरी ने। अच्छा, ऐसा बिल्कुल ही एक सेम पेपर बच्चों लोग तेंजिंग के पास भी है। इट इज साइन बाय तेंजिंग बिकॉज दे सेड दैट वी डिड नॉट वांट टू टेक पार्ट इन एनी कंट्रोवर्सी, और फ्यूचर में भी जाके बच्चों लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो तेंजिंग ने क्या बोला था, ही सेड दैट हिलरी एंड आई, अभी यहाँ पे आई मतलब कौन, तेंजिंग, एम्ब्रेस व्हेन वी रीच द टॉप, ऊपर जाने के बाद एक दूसरे के गले मिले थे वो लोग। लेकिन आप सबको पता है बच्चों लोग, व्हेन यू आर इनटू माउंटेनियरिंग, जब आप माउंटेनियरिंग करते हो तो दे हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ बल्की इक्विपमेंट। उनके जैकेट्स होते हैं बच्चों लोग, अच्छा, अलॉन्ग विद दैट बैग्स वगैरह रहेगा, अच्छा ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन का मास्क रहेगा, कैप्स होते हैं, अच्छा वाटर टम्बलर्स वगैरह रहेगा, ओके आइस एक्स वगैरह भी होता है बच्चों लोग। जस्ट इमेजिन विथ ऑल दैट इक्विपमेंट आप सामने वाले को ज्यादा हग तो नहीं कर पाओगे, सिर्फ सिंबॉलिकली उन्होंने हग किया रहेगा। अच्छा, और तभी तेंजिंग ने हिलरी को बोला था यस वी हैव डन इट, हमने कर दिखाया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि एक दूसरे को सुनाई भी नहीं दे रहा था क्योंकि दे वर हैविंग देयर ऑक्सीजन मास्क ऑन, ठीक है। अभी सवाल आता है बच्चों लोग कि ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले उनके माइंड में क्या फीलिंग आया रहेगा बच्चों लोग। जैसे इमेजिन चिल्ड्रन, जब हम लोग बोर्ड एग्जाम्स देते हैं और फिर रिजल्ट वगैरह हाथ में आता है, अब तक तो हाथ में आया नहीं है तो आपको फीलिंग महसूस नहीं हुआ रहेगा, लेकिन जस्ट इमेजिन वो जो एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है बच्चों लोग, इट्स ग्रेट, नथिंग कैन बी कंपेयर टू दैट चिल्ड्रन। सो यहाँ पे
as soon as he reached the top, it was something like a sense of gratitude to God. क्या फील कर रहे थे? ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रेटफुल. एंड वी इंडियंस आर ऑलवेज यूज्ड टू थैंकिंग गॉड व्हेनेवर वी अचीव समथिंग इन लाइफ. और बच्चे लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन भी था ये सबके पीछे. रीजन क्या था पता है? इससे पहले 6 बार तेंजिंग नॉर्गे अटेम्प्ट कर चुका था ऊपर जाने के लिए माउंट एवरेस्ट पे, लेकिन फेल हुए थे. तो आफ्टर ट्राइंग फॉर द 6th टाइम चिल्ड्रन, 7th टाइम पे आप जब सक्सेसफुल होते हो, एक बार तो ऐसी आई थी कि ऑलमोस्ट लाइक माउंट एवरेस्ट दिख रहा था, अभी पता था कि लाइक 100-200 फीट ऊपर जाने का, लेकिन उस टाइम पे वहां पे क्लाइमेट इतना खतरनाक हो गया था कि लाइक दिस पीपल हैड टू कम डाउन. जस्ट इमेजिन ना, जस्ट माउंट एवरेस्ट की पीक से 200-300 फीट से आपको वापस आना पड़ता है, उससे बुरा फीलिंग नहीं हो सकता है. ठीक है. सो एक फुलफिलमेंट था बच्चे लोग, एंड ही वाज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड. ऐसे लग रहा था कि लाइक आज वो बहुत ज्यादा खुश नसीब है, आज उसको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिला रहेगा गॉड का, एंड दैट इज व्हाई ही वाज एबल टू रीच देयर चिल्ड्रन, एंड इट वाज हिज लॉन्ग ड्रीम दैट ही चेरिश्ड चिल्ड्रन, वी कुड से. ठीक है. अच्छा, नाउ एज सून एज दिस पीपल हैव रीच्ड द टॉप, वहां पे पहुंचने के बाद में उसने क्या किया रहेगा कि समिट के ऊपर, मीन्स वो पहाड़ के ऊपर, पीक के ऊपर, उसने जो भी अपने साथ ऑफरिंग्स लाए थे वहां पे रखे थे. अच्छा, उनकी वाइफ बच्चे लोग और तेंजिंग ये दोनों भी बुद्धिस्ट थे. कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं? बुद्धिस्ट. ठीक है. तो उनके रिलीजन जो उनको सिखाता है वैसे, ही वांटेड टू गेट ऑन टू हिज नीज, अपने घुटनों के बल नीचे बैठना चाहता था, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि उनके पास सामान इतना होता है कि उसमें वो नील डाउन नहीं कर सकता था. तो वैसे ही उसने अपने दिल से एक प्रेयर बोला था, आई ऑफर्ड अ साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट, मतलब दिल से एक प्रेयर बोला था भगवान को थैंक यू बोलने के लिए. अच्छा, अभी आप बोले सर क्या क्या ऑफर किया था वहां पे उसने? चिल्ड्रन, इट वाज लाइक बिस्किट्स, कैंडी एंड अ लिटिल ब्लू पेंसिल. और ब्लू पेंसिल के पीछे एक छोटा सा स्टोरी था. उनकी सबसे छोटी डॉटर थी, आई थिंक ही हैड 6 or 7 डॉटर्स, अमंग द यंगेस्ट वन जिसका नाम था नीमा. उसने डैडी के पास एक छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा दिया था, पूरा पेंसिल भी नहीं था जब वो निकले थे इस एक्सपीडिशन पे. ठीक है. और नीमा ने बोला था कि लाइक डैडी जब आप माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाओगे या फिर दुनिया के टॉप पे, तो मेरी तरफ से ये ऑफर कर देना करके. तो ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल था चिल्ड्रन, नॉट अ लॉन्ग वन. हाँ, लेकिन उनकी बेटी का एक प्राइज्ड पोजीशन था वो. अच्छा, प्राइज मतलब कीमती, पोजीशन मतलब एनीथिंग विच यू फील लाइक इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट. और जैसे वो पेंसिल उसने नीचे रखा था और उसने हिलरी की तरफ भी इशारा किया था, हिलरी ने जैसे ही देखा तो शायद हिलरी समझ गया था कि लाइक व्हाट वाज द फीलिंग बिहाइंड दैट पेंसिल, दैट ही अंडरस्टूड. ठीक है. अच्छा, फिर क्या? चलो, उसने एक स्ट्रिंग लिया था. चलो, वहां पे वो फ्लैग, चारों फ्लैग लिए थे, और वो स्ट्रिंग को, उसके पास एक आइस एक्स था. आई ऑलरेडी टोल्ड यू चिल्ड्रन, उस आइस एक्स को बांधा था और ऐसे लहरा के दिखाया था. एंड हिलरी टुक द पिक्चर्स, हिलरी ने उनके फोटोज लिए थे. लेकिन आपको ये भी पता है कि जब नीचे जाने का है तो उनको उस आइस एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो आइस एक्स वहां पे नहीं रख सकता था. तो उसने क्या किया, वो लहरे एक रस्सी को, लाइक वो जो झंडे लहरा रहे थे उनको पकड़ा, एक रस्सी से बांधा, वो रस्सी आइस के अंदर घुसा के रख दी थी. ठीक है. ऑन द आइस ऑन द टॉप, एंड ऑन द अदर इन स्नो ऑन द स्लोप डाउन बिलो, तो नीचे स्लोप पे. लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद शायद वो झंडे वहां पे लहराते वो बर्फ के ऊपर गिर गए रहेंगे. एंड यू नो, लाइक समवन आस्किंग मी लाइक सर वो फ्लैग्स का बाद में क्या होता है? वहां पे बच्चे लोग तूफान वगैरह आते जाते रहते, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम. ठीक है. सो द फ्लैग्स वर लाइंग फ्लैट आफ्टर दैट. ठीक है. अभी इसी वक्त बच्चे लोग शेरपा तेंजिंग, ही वाज फीलिंग थर्स्टी, प्यास लगी थी. लेकिन प्रॉब्लम क्या था पता है? जैसे वो टम्बलर से बाहर पानी निकाला ना उन्होंने पीने के लिए, ठीक है, तो उनको पता चला था कि पानी फ्रोजन हो गया था, बर्फ हो गया था उसका. सो ही कुडंट क्वेंच हिज थर्स्ट. क्वेंच का मीनिंग पता है सबको? यस, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, प्यास बुझाना. ठीक है. तो उन्होंने कुछ बिस्किट्स खाए थे और हिलरी को कुछ बिस्किट्स दिए थे उन्होंने उस टाइम पे. अच्छा, वन मोर थिंग चिल्ड्रन, एज ही वाज दिस पर्टिकुलर प्लेस ऑन द माउंट एवरेस्ट समिट, तो उनके पास था एक रेड कलर का स्कार्फ, जैसे स्टोल के जैसे होता है वैसे, मफलर के जैसे. अच्छा, चलो 1952 में, एक साल पहले, स्विट्जरलैंड ने एक एक्सपीडिशन कैरी आउट किया था जिनमें तेंजिंग भी था और उनका एक कलीग था बच्चों जिनका नाम था लैम्बर्ट. तो तभी तो लोग फेल हो गए थे.
तो लास्ट से उन्होंने बोला था कि लाइक इसके आगे तुम जब भी जाओगे माउंट एवरेस्ट पे तो मेरी तरफ से मेरा निशानी करके ये रेड कलर का स्कार्फ लेके जाना करके, ठीक है। सो तभी तो व्हेन दे वर गोइंग ऑलमोस्ट लाइक 28,205 15 फीट पे जब वो लोग पहुंचे थे तो उस टाइम पे उस स्कार्फ एक्चुअली उन्होंने अपने पास पकड़ा था एज अ मेमोरी टू हिज फ्रेंड एंड इट वाज लाइक माइट बी अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एज आई टोल्ड यू, ठीक। अच्छा, तो उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग से निकल कर पूरे माउंटेन के टॉप पे जाने तक उन्होंने वो स्कार्फ पहन के रखा था एंड आई रिमेंबर्ड हिम एंड आई फेल्ट दैट ही वाज विथ मी। तो उनको लग रहा था कि वो जो लैम्बर्ट था उनके साथ में ही है। अच्छा, देन आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट एट द समिट, बहुत अच्छा फील कर रहे थे वहां पे, माइंड एकदम क्लियर हो गया था and like there was so much of tiredness children, you lose lot of weight, then breathing ka problem, it was almost like you're risking your entire life, but the feeling of exhilaration and excitement and ecstasy we can say, and it was a clear sensation के लिए वो लोग बहुत खुश थे, ठीक है। जैसे नीचे देखा उन्होंने तो नीचे ऐसे लग रहा था बच्चे लोग ना कि लाइक वो नीचे के माउंटेन्स पहाड़ रेंजेस ऐसे लग रहा था कि लाइक सब देव देवता वगैरह सब वहां पे मिलेगी, गॉड एंड गॉडेस, गॉड्स मतलब भगवान, गॉडेसेस यानी देवी होती है, ठीक है। और नीचे के जो प्लेन एरिया था इट वाज लुकिंग लाइक अ ब्रोकन पीसेस ऑफ मैप के जैसे टुकड़े किसी ने जोड़ के रखे वैसे दिखे। अच्छा, माउंटेन का जो समिट था बच्चों लोग, मतलब वहां पे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लोग ही खड़े रह सकते थे वहां पे। अच्छा, दैट ऑल्सो इफ यू कट द आइस। हाँ, वहां से 20-30 फीट नीचे निकलोगे तो वहां पे एक थोड़ा फ्लैट स्क्वायर था जहां पे 2 लोग आसानी से सो सकते थे, मतलब 2 पीपल कुड स्लीप देयर। अच्छा, वहां पे एक छोटा सा टेंट भी लगा सकते हो आप। अच्छा, वो जो टॉप है बच्चों लोग, शिखर है, द समिट, उसका एक खासियत यहाँ पे क्या पता है कि द समिट इज फ्लैट ऑन वन साइड, एक साइड से फ्लैट है, एंड स्टीप ऑन दी अदर, एक साइड से फ्लैट और दूसरी साइड से पूरा स्टीप। स्टीप का मतलब क्या होता है, ढलान होती है वहां पे। अच्छा, एंड देयर इज स्नो ऑन दी नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ की तरफ पूरा का पूरा बर्फ से भरा पड़ा हुआ रहता है, वो भी स्नो, एंड साउथ एंड ईस्ट एंड स्नोई रॉक ऑन द वेस्ट। तो एक साइड में आपको चट्टान भी मिलेंगे, ठीक है। गिन के बच्चों लोग फॉर 15 मिनट्स दिस पीपल आर स्टैंडिंग ऑन द समिट। आपने अपने जिंदगी का इतना सारा मेहनत उसके अंदर डाला हुआ है, जब टॉप पे पहुंचे तो यू कुड सी दैट सक्सेस ओनली फॉर 15 मिनट्स। और ही सेज कि लाइक वी वर सो लकी दैट देयर वाज नो गेल। हम लोग इतने लकी थे कि उस टाइम पे वहां पे कोई गेल नहीं आया था। बोले किस कौन सा, क्रिस गेल, हाँ, एक गेल और वो गेल भी सेम है, वो भी तूफान है और ये भी तूफान ही है। सो इमेजिन करना बच्चों, समिट पे होते हुए गलती से भी अगर वहां पे कोई गेल आता था तो फिर समझ जाने का कि लाइक तेंजिंग और हिलरी गायब रहते थे, फिर आपको उनको ढूंढना भी नहीं पड़ता था क्योंकि कहां पे जाते हैं वो किसी को मिलता नहीं बाद में, ठीक है। लेकिन बच्चों लोग वहां पे वो जो फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट था उसके बीच में एक टेंशन भी था, और वो टेंशन क्या था पता है, नीचे जाना बाकी था। और ही सेज वेरी क्लियरली चिल्ड्रन दैट the next thought he was, it was in his mind how to get down. Now on the descent from the summit, descent का मतलब होता है बच्चों लोग to climb down। तो हिलरी आगे था और बैक से कौन फॉलो कर रहा था, तेंजिंग। अच्छा, तो रोप टाइटली पकड़ के ये उसको फॉलो कर रहा था। एंड यू नो लाइक फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने रोप पकड़ा हुआ है, आगे कौन है, हिलरी है, बैक साइड से आपने पकड़ा हुआ है, तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि आपके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। अगर आपने रोप थोड़ा सा भी ढीला वगैरह कर दिया तो सामने वाले को रिस्क, एंड ही वाज मेकिंग इट श्योर दैट ही केम डाउन सेफली। एंड दे आर वेरी श्योर चिल्ड्रन दैट क्लाइंबिंग अप वाज नॉट एज मच डिफिकल्ट एज क्लाइंबिंग डाउन। सो क्लाइंबिंग डाउन इज मोर डिफिकल्ट एंड मोर डेंजरस देन क्लाइंबिंग अप, बिकॉज इफ यू जस्ट स्लिप डाउन, अगर आपने गलती से भी स्लिप भी कर दिया ना तो समझ जाने का कि वहां पे एक ग्लेशियर बहता था बच्चों। ग्लेशियर का नाम मेंशन किया हुआ है कांगशन करके। तो ग्लेशियर के अंदर अगर आप गिर गए ना तो फिर आपका कोई निशाने भी नहीं मिलेगा और कोई ढूंढेगा भी नहीं, क्योंकि पता ही था कि कुछ नहीं दिखने वाला है करके, ठीक है। सो मोर कॉशन वॉज नीडेड एज दे वर क्लाइंबिंग डाउन। सो दे टुक टाइम कम लगता है लेकिन कॉशन ज्यादा लगता है, बट यू नीडेड टू बी मोर होशियार। होशियार मतलब केयरफुल, कॉशन। सो जैसे ही वो लोग वापिस से रिटर्न कैंप 9 पे आ गए तो सबसे पहला क्या था, थैंक गॉड दैट वी हैव बीन सेव्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। मतलब आज तक जितनी भी बार उन्होंने क्लाइम किया था तो तब तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, और ही सेज कि लाइक आई होप देयर वोंट बी एनी एक्सीडेंट्स इन द फ्यूचर। फ्यूचर में भी कोई एक्सीडेंट ना हो इसकी उम्मीद रखता हूं मैं,
and obviously thankful to God for saving him from that situation. अच्छा, अभी वहां पे कैंप 9 में पहुंचने के बाद में आपको लगा रहे सब बैठ के मस्त उन्होंने सेलिब्रेट, नहीं, हिलरी एंड आई दे वर नो मूड इन टॉकिंग, क्योंकि इतना थकावट महसूस होता ना बच्चे लोग, टोटली एग्जॉस्टेड, सो अपने अपने काम में बिजी थे, अटेंडेड टू देयर ओन थिंग्स. अच्छा, दे वर देयर फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए रुके थे, थोड़ा बर्फ बॉईल किया वहां पे, उसमें थोड़ा लेमन मिक्स किया था एंड देन दे ड्रैंक, शरबत बना के पिया था. जैसे वहां से वो लोग निकले थे तो ज्यादातर सामान अभी वो लोग कैरी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो वजन के साथ में आप नीचे उतर नहीं पाओगे. तो क्या किया, बाकी सब छोड़ दिया था, सिर्फ स्लीपिंग बैग्स अपने साथ में लिए थे और बाकी सब कुछ वहां पे टेंट में छोड़ दिया था. बच्चे लोग जब ये लोग एक्सपीडिशन पे निकलते तो दे आर नॉट अलोन, पूरा उनका एक टीम होता है, एक एक कैंप सेटअप करके वो लोग आगे जाते रहते. तो यहाँ पे लास्ट तक पहुंचने वाले 2 जन थे. अच्छा, कैंप 9 पे आए थे. अच्छा, फिर बाद में कैंप 8 की तरफ आने वाले थे. अच्छा, कैंप 8 पे दे वर सपोज टू स्पेंड द एंटायर नाइट एंड इट वाज अ इजियर जॉब. अच्छा, जस्ट अबाउ कैंप 8 के वहां पे जब वो लोग पहुंचने वाले थे, जहां पे नीचे से उनके कॉलीग्स उनको देख सकते थे कि हाँ तेंजिंग और हिलरी नीचे आ रहे करके, तो इमेजिन करना के लिए उनको कितना खुशी हो रहा था. देयर फेसेस चिल्ड्रन दे फ्लश विद जॉय. एंड इन एग्जांपल, मतलब इन दिस वे आई वाज एबल टू टेल देम अबाउट द सक्सेस. वहां पे जैसे उन्होंने नीचे देखा था, वहां पे कुछ लोगों का नाम मेंशन किया बच्चों लोग वहां पे, जिनको उन्होंने थम्स अप दिखाया था, जैसे CWF नॉइस. बच्चों लोग ये जो ब्रैकेट में डाला है, दिस इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, इट्स जस्ट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ देयर नेम्स. ये कुछ ब्रिटिश लोग थे बच्चों लोग. CWF दैट इज कथबर्ट विल्फ्रेड फ्रांसिस नॉइस करके एक कोलिग थे उनके, एंड देयर वाज WG लुई करके लिखा है, और लो फॉर एग्जाम्पल वॉलेस जॉर्ज लो, जिन्होंने वो कैंप 7 सेटअप किया था चिल्ड्रन. तो वो लोग इतने खुश हो गए थे ना, और ये उनको अपने सक्सेस के बारे में बता के और ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे. जैसे कैंप 8 के नजदीक पहुंचे थे तो जॉर्ज लो जो थे वो ऑलमोस्ट लाइक, कैन यू जस्ट इमेजिन, जॉर्ज लो वहां से देख रहा है, ये लोग आने में 300 फीट बाकी है, ये आदमी उनके लिए चाय और कॉफी लेके 300 फीट ऊपर चढ़ के गया था. बच्चों लोग जस्ट फील हाउ हैप्पी ही वाज फीलिंग फॉर देयर अचीवमेंट, वी कैन से. ठीक है. अच्छा, और 50 फीट नीचे आए तो उन्होंने देखा जो नॉइस थे ना बच्चों लोग, कौन, CWF नॉइस, वो भी वहां पे, और उनके लिए थोड़ा चाय लेके पहुंच गया था. उनको पता है अभी नीचे आएंगे, फिर भी 50 फीट ऊपर चाय लेके गया था. लेकिन चाय का पूरा स्मेल किसे आ रहा था पता है? केरोसिन. इसका मतलब क्या हो गया था कि उसने एक्साइटमेंट में चाय बना दी थी, लेकिन घाई गड़बड़ी में थोड़ा सा केरोसिन वो चाय के अंदर मिक्स हो गया था, और वो उनके लिए वेलकम कप था. लेकिन फिर तेंजिंग क्या बोलता, अभी दूसरा कोई होता तो व्हाट ही वुड से कि अरे केरोसिन नहीं पीने का, बट ही सेज दैट कि वो जो जेंटलमैन था, कौन, नॉइस, उसने इतना मेहनत करके वो चाय लेके कितने प्यार के साथ ऊपर तक आया था ना, तो बोलता है कि आज उसके अंदर कुछ भी रहेगा, उसका कौन सा भी स्मेल आएगा तो भी मैं वो चाय पीने वाला ही था. किसने बोला ऐसे? तेंजिंग ने. ही सेज दैट आई वाज गोइंग टू एंजॉय इट व्हाटएवर द स्मेल. एंड दिस children is an account given by Tenzing Norgay. This article was published in the Times of India, and it was the biggest achievement for all these people whoever was associated with the climbing of Mount Everest. इससे पहले कौन गया था कि नहीं गया था पता नहीं, लेकिन जहां तक हम लोगों को पता है तो तेंजिंग नॉर्गे from India, or for example Nepali Indian, and another one that is Edmund Hillary from New Zealand were the two people who reached Mount Everest. Children, in the coming lecture मैं आपको आइस ब्रेकर सॉल्व करा के दूंगा, एंड अलॉन्ग विद दैट विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. तो एक एक चैप्टर थरली हम लोग पढ़ के फिर आगे बढ़ते रहेंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन. होप सो यू अंडरस्टूड द लेसन. टेक केयर, stay home, stay safe, and see you for the next lecture. Bye everyone.